بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ مقدس سیزن 2 ایپیسوڈ نمبر 9۔ دریائے دولا کے کنارے کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد تاتاری لشکر، جس کے سالار اعلیٰ برکائی کا بڑا بھائی باتو تھا، مگر اصل اختیارات بہادر تاتاری جنرل سبودائی کے ہاتھ میں تھے، روس کی کالی مٹی کے علاقوں کی طرف کوچ کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ سب سے پہلے سبودائی نے ایک جرار لشکر بہادر بلغاریوں کی سرگوبی کے لیے دولکا کی طرف روانہ کیا۔ کئی خونخوار معرکے ہوئے جن میں وحشی تاتاریوں نے بلغاریوں کو کچل دیا اور ان کے تجارتی مراکز کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اسی اثناء میں سبودائی نے منگو خان کو جنوب کی طرف بہادر اور وحشی ترکوں کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے روانہ کیا۔ منگو خان آندھی اور طوفان کی طرح ترکوں پر حملہ ور ہوا۔ کچھ ترک قبیلوں نے اطاعت قبول کر لی، لیکن ترکوں کے زیادہ تر قبیلوں نے مغرب کی طرف دریائے نیبیر کو پار کر کے بھاگ جانے میں اپنی عافیت سمجھی۔ منگو نے بھاگتے ہوئے ترکوں کا تعاقب نہ کیا اور واپس لوٹ گیا۔ اس کے بعد لشکر نے کوچ کیا اور اہل روس کی طرف قاصد بھجوا کر مطالبہ کیا، اگر ہمارے انتقام سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو ہر چیز کا 10واں حصہ ہمیں دو۔ 10% آدمی، 10% عورتیں، 10% گھوڑے، غرض ہر چیز کا 10واں حصہ۔ جب یہ اجنبی تاتاری قاصد شہر پناہوں کے دروازوں کے قریب پہنچے تو روسیوں نے انہیں قتل کر دیا۔ تب تاتاریوں نے ان سے انتقام لینے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا۔ جاڑوں میں جب ہر طرف برف پھیلی ہوئی تھی اور دریا منجمد ہو چکے تھے، روسیوں کو تاتاریوں کی طرف سے حملے کی توقع نہ تھی، لہٰذا وہ اپنے فصیلوں سے گھرے ہوئے شہروں کے اندر غلے اور گوشت کے گوداموں کے ساتھ بندھے ہوئے۔ اسی طرح روسی اطمینان سے سردیاں گزارنے کے بعد تاتاریوں سے جنگ کرنے کا ارادہ کر چکے تھے۔ روسیوں نے تاتاریوں کی طاقت کو غلط اندازہ لگایا تھا۔ تاتاری برف کے طوفانوں اور یخ بستہ دریاؤں کی پرواہ کیے بغیر روس پر حملہ ور ہوئے۔ پہلے انہوں نے روسیوں کے شہر ریازان کو نشانہ بنایا۔ تاتاری قہر الہی بن کر آگے بڑھے اور منجیکوں سے شعلہ باری کر کے انہوں نے یرزار کی لکڑی کی فصل جلا کر راکھ کر دی۔ تاتاری دارانہ شہر میں داخل ہوئے اور قتل عام کر کے گلیوں میں پڑی برف کو انسانی خون سے سرخ کر دیا۔ بہت سے لوگوں کو انہوں نے سینقوں سے چھید کر کے تل ملا کر قتل کیا۔ جو لوگ کلیساؤں میں پناہ گزین ہوئے انہیں وہاں سے نکال کر عورتوں کے سب کے سامنے عظیمت دری کی اور مردوں کو قتل کر دیا۔ روسی شہر یرزان ایک مقتول بن گیا تھا۔ اس کے بعد تاتاریوں نے بڑی سرعت سے ایک ٹیلے سے دوسرے ٹیلے میں پھلانگنا شروع کر دیا اور یکے بعد دیگر روسی شہر سوزوال، رستوف اور بارہ سولال فتح کیے، خون کی ندیاں بہائی اور شہر منہدم کر کے رکھ دیا۔ تاتاری جس طرف بھی گئے زمین کو انسانی خون سے رنگین بناتے چلے گئے۔ اب انہوں نے روس کے عظیم شہر ماسکو کا رخ کیا۔ ان دنوں ماسکو ایک چھوٹا شہر تھا اور اس جگہ واقع تھا جہاں اب بلندی پر کیملین کی عمارتیں ہیں۔ تاتاریوں نے ماسکو کو فتح کر کے قتل عام کیا اور شہر کو نظر آتش کر دیا۔ ماسکو سے باہر کلمنگا ندی کے کنارے ایک روسی فوج نے بڑی پامردی سے تاتاریوں کا مقابلہ کیا، لیکن یہ ساری روسی فوج تاتاریوں کے ہاتھوں ہلاک اور تباہ ہو گئی۔ تاتاریوں نے دسمبر میں روس پر یلغار شروع کی تھی اور مارچ کے آخر تک انہوں نے روس کے بڑے بڑے 12 قلعے بند شہر فتح کر کے منہدم کر کے دیے تھے۔ مارچ کے بعد برف پگھلنا شروع ہو گئی تھی اور موسم بہار کی بارشیں شروع ہو چکی تھی۔ تاتاری فتح کے پرچم لہراتے ہوئے بحیرے بالٹن کے قریب جھیل یلمن کے کنارے اس دور کے مشہور شہر نوت گورد کی طرف بڑھے۔ ایک تجارتی شہر تھا اور یہاں کے لوگ جرمنی کے بندرگاہوں سے تجارت کر کے خوب دولت کماتے تھے۔ تاتاری بڑی تیزی سے اس شہر کی طرف بڑھے، لیکن شاید اس شہر کے مکینوں کے مقدر اچھے تھے کہ تاتاری ابھی اس شہر سے 60 میل دور تھے کہ سخت تیز موسلے دھار اور طوفانی بارشوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سبودائی کے مشورے پر لشکر واپس پلٹا اور سرما کی لگاتار اور پیہم کشمکش کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے انہوں نے
1238 ईस्वी में जुनूब के गर्म इलाकों का रुख किया। तातारी लश्कर जुनूब में तूफान की तरह पिघलता हुआ बहरे अस्वद के किनारे किनारे करीबिया तक फैल गया। यहीं से सुबुदाई के कुछ दोस्तों ने कुहे कफकार की बुलंदियों को उबूर करके उस पर शुमाल ईरान की तातारी फौजों से राब्ता कायम कर लिया और तबरेज तक फैलते हुए उन्होंने उमेर के टीले तिलम पर हमला कर दिया। बहरे अस्वद के किनारे तातारी लश्कर फरकोश हुआ। यहाँ लश्कर के सालार आजम बातू ने नए हमलों का आगाज करने के लिए एक कुरुताई मजलिस शोरा मुनक़द की। जब मजलिस शोरा शुरू हुई और बातू ने औरों की निस्बत शराब के 2 जाम सबसे पहले पिए तो गुदाई का बेटा उयूक और चुगुदाई का बेटा बुरी गुस्से में भड़क उठे और महफिल से उठ खड़े हुए और गुस्से में बातू को गालियां देते हुए चिल्लाने लगे कि बातू किस तरह हमसे अफजल नहीं और वो ये कि उसने हमसे पहले क्यों शराब पी। बोरी ने घराते हुए कहा, बातू ऐसा है जैसे किसी भेड़िया के मुंह पर दाढ़ी लगा दी गई हो। मैं बातू को एक लात मारूं तो गिरकर लूटने लगे। कुयूक ने झाग छोड़ते हुए कहा, बातू ऐसा है जैसे किसी भेड़िया को जर्रा पहनाकर उसके हाथ में तलवार दी जाए। मैं अपने सिपाहियों को हुक्म दूंगा कि बातू को डंडे लगाने जाए। चौगदाई के दूसरे लड़के बाई वार ने उठकर कहा, बातू की लकड़ी की दुम लगा दी जाए। सुबुदाई लश्कर को कूच करने का हुक्म देकर नए हमलों का आगाज करना चाहता था, लेकिन तातारी शहजादों की आपस की कशमकश के सामने वो मजबूर था और वो कुछ ना कर सकता था। बातू ने सारे बातें दश्त के खाकान उगदाई को लिख भेजी। महीनों बाद एक कासिद उगदाई का पैगाम लेकर आया। उगदाई ने अपने बेटे कुयूक को सख्त मलामत की थी और लिखा था कि चुगदाई अपने बेटों बोरी और बाईदार से खुद निमट लेगा। इसके अलावा उगदाई ने बातू को भी सख्त फरमाइश की थी। कुयूक बोरी और बाईदार को दश्त में वापस बुला लिया गया। उगदाई खान बीमार रहने लगा था, इसलिए सूरकीती ने अपने बेटे मुंगो को भी वापस बुला लिया था, क्योंकि उगदाई के बाद वो अपने बड़े बेटे मुंगो को दश्त का खाकान देखना चाहती थी। अपने बेटे और भतीजों के साथ उगदाई के नरम रवैये के बड़े बड़े असरात निकले। एक तरफ तो बातू और बरकाई के दिलों में शुकूक व शुबहात पैदा हो गए कि हमारी कोई हैसियत नहीं, और वो दश्त के खाकान का जुआ उतार फेंकने की फिक्र में लगने लगे। दूसरे आने वाली नस्लों पर इसके बुरे असरात हुए और तुर्क शहजादे आपस में लड़ने लगे, जैसा कि बाद में मुंगो के भाई और फातेह चीन कुबलाई खान और उगदाई के बेटे कायदो, उसके अलावा मुंगो के भाई हुलाको और बरकाई खान में ना खत्म होने वाली जंगों का सिलसिला शुरू हो गया। उगदाई खान अगर इस मौके पर सख्त रवैया रखता और अपने बेटे और भतीजों को मुनासिब सजा देता तो तातारी ताकत में इतनी जल्दी रुझान पैदा न होता। उमेर अरीता के साथ अपनी पहाड़ी मिस्किन की एक बुलंद बुर्ज पर खड़ा था। उनके सामने दूर जहां नीलकों आसमां जमीन से गले मिल रहा था, यरूशलेम की बुलंद बुर्ज दिखाई दे रही थी। दूर दूर तक जमीन के सीने को छोटे छोटे तल्ख और शीरीन पौधों ने ढांप रखा था। चार सू दहकते सूरज की गर्म शुआओं के आतिशदान रोशन थे। अरीता ने बड़े प्यार से उमेर का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, उमेर, वो दौर जो बुर्ज पर नजर आ रहे हैं यरूशलेम के हैं। वो दूर जो बुर्ज नजर आ रहे हैं यरूशलेम के हैं। उमेर उदास हो गया और भारी आवाज में कहा, हाँ। अरीता उसकी हालत देखकर पिस सी गई। बड़े प्यार से पूछा, आप उदास क्यों हो गए? उमेर ने अपने जहन को फौरन बदल लिया। नहीं, मैं कुछ और सोच रहा था। क्या सोच रहे थे आप? कुछ नहीं, अनीता ने प्यार से जिद की। क्या मुझे भी नहीं बताएंगे? उमर फिर उदास हो गया। मैं यरूशलेम के माजी हाल और मुस्तकबिल के मुतालिक सोच रहा था। कैसा माजी हाल और मुस्तकबिल? क्या यरूशलेम पर इस वक्त मुसलमानों का कब्जा नहीं? नहीं, यरूशलेम पर इस वक्त ईसाई काबिज है। अनीता अफसुर्दा हो गई। वो कैसे? एक लंबी कहानी है, मैं सुनना पसंद करूंगी। उमर ने उसे टालना चाहा। आओ नीचे चलते, यहाँ अब हवा तेज और गर्म हो गई है। अनीता ने उमर का बाजू पकड़ लिया और प्यार में मचल गई। पहले बताइए ना, ईसाई कैसे सलाहुद्दीन अय्यूबी के बाद यरूशलेम पर काबिज हो गए? उमर संजीदा हो गया और कहना शुरू किया, ये 1228 ईस्वी का अलमनाक साल है, जब यरूशलेम और उसके गिर्द नवाह का काफी इलाका, जिसकी आबादी फर्जंदे इस्लाम सलाहुद्दीन ने अपने खून से की थी, ईसाइयों को मुंतकिल हो गया।
ईसाइयों की निगाहें शुरू ही से अर्ज़ फ़िलिस्तीन पर जमी हुई थी। सलाहुद्दीन के बाद इसका शेर दिल भाई अल मलिक अल आदिल अर्ज़ फ़िलिस्तीन की हिफाजत करता रहा। जब ये अदकश मुजाहिद मर गया और सलाहुद्दीन की दूर दूर तक फैली हुई हुकूमत उसके मुख्तलिफ बेटों में बढ़कर कमज़ोर हो गई, तो पाए रूम गिरुकुरी नहुम ने जर्मनी के बादशाह फ्रेडरिक को फ़िलिस्तीन पर हमला करने का हुक्म दिया। फ्रेडरिक फौरन एक अजीम लश्कर के साथ जर्मनी से रवाना हुआ। अभी वो एक मकाम बरंडजरी तक आया ही था कि बीमार हो गया और वापस चला गया। गिरुवी नहुम निहायत सरकश तबाह था। उसे फ्रेडरिक की वापसी नागवार गुजरी, लिहाजा उसने फ्रेडरिक को ईसाई मजहब से खारिज कर दिया। फ्रेडरिक दोबारा रवाना हुआ और अर्ज़ फ़िलिस्तीन पर हमलावर हुआ। उन दिनों मिस्र पर अल मलिक अल आदिल का बेटा अल मलिक अल काहिल और शाम पर उसका भतीजा अल मलिक अल नासिर नया हुक्मरान बना था। उस वक्त उसकी उम्र 20 बरस थी। ये दोनों ही जर्मनी के बादशाह फ्रेडरिक का मुकाबला न कर सके और एक सुलहनामा तय पाया, जिसकी रूह से यरूशलेम, याफा, बैतुल हलम और नासिरा जैसे शहर ईसाइयों के हवाले कर दिए गए। मुसलमानों के पास चंद शहर जलील, नाबलिस, गौर और तबीरा रह गए। इस वक्त से अब तक यरूशलेम पर ईसाई काबिज है। उमर खामोश हो गया, उसकी गर्दन झुक गई थी और चेहरे पर गहरी उदासियां बिखर गई थी। अनीता ने फिर उसे मुखातिब किया, यरूशलेम यहाँ से कितनी दूर होगा? उमर ने आहिस्ता आहिस्ता सर ऊपर उठाया, 30 मील। अनीता भी अफसरदा हो गई और गर्दन झुकाते हुए पूछा, अब कब तक दुश्मनों से लड़ते रहेंगे? उमर जैसे कहीं खो गया था। मैं अपनी मौत तक किसी ऐसे हुक्मरान, किसी ऐसे मर्द मुजाहिद और ऐसे आफाकगिरी सिपह सालार का इंतजार करता रहूंगा जो आलम इस्लाम के किसी भी उफुक से तूफान की तरह उठे, ऐसा तूफान जिसके आगे दुश्मनाने इस्लाम बंद ना बांध सके। और ये मुस्कन उसके एक अमानत समझ कर मैं उसके हवाले करके उसके अफवाज में एक आम और गुमनाम सिपाही के हैसियत से लड़ना पसंद करूंगा। उमर ने एक आह भरकर कहा, जाने वो वक्त कब आएगा, जाने वो सिपह सालार कौन हो और कब मेरे ये ख्यालात अमली जामा इख्तियार करे। मैं अपने रब से दुआ गो हूँ कि मेरी जिंदगी ही में आलम इस्लाम में कोई एक ऐसा हुक्मरान, ऐसा सिपह सालार पैदा करे जो एक तरफ बहर रूम के साथ साथ मजबूत किलों में फैली हुई सलेबी टेम्पलर्सों को उखाड़ कर रख दे और दूसरी तरफ शुमार किस्म से आंधियों की तरफ बढ़ते हुए तातारियों को पाँव काट दे। उमर की पलक भीग गई और वो भरी हुई आवाज में उसने कहा, काश इस वक्त फर्जंद इस्लाम सलाहुद्दीन जिंदा होता और देखता कि जो सरजमीन उसने बरसों की लड़ाइयों के बाद हासिल करके उसके अंदर मुनज़्ज़म हुकूमत कायम की थी, उसके अंदर दुश्मनाने इस्लाम किस तरह घुस आए हैं। खुदा की कसम, अगर इस वक्त सलाहुद्दीन जिंदा होता तो अपनी भारी तलवार से दुश्मन पर ज़रबें लगाकर उन्हें एक उफुक से दूसरे उफुक तक अपने आगे आगे लोमड़ियों की तरह हटकाता चला जाता। और जंगेज खान जैसे हजारों भेड़िया नुमा इंसान भी अगर उसके सामने आए तो उन्हें अपने एक ही आहिनी ज़ब से फिलिस्तीन के सर्द पाताल में उतार देता। उमर खामोश हो गया। लम्हा भर उसकी टूटी हुई आवाज यकसीर बदल गई थी। अरीता मुंह दूसरी तरफ की आंसू बहा रही थी। चंद लम्हों की खामोशी के बाद उमर ने कहा, आओ अरीता नीचे चले। अरीता ने अपनी आंखें खुश कर ली और प्यार से उमर की तरफ देखते हुए उसका हाथ थाम लिया और वो दोनों बुर्ज से नीचे उतरने लगे। अपने घर की तरफ जाते हुए उमर और अरीता अभी बुर्ज से थोड़ी ही दूर थे कि हवाजन सामने घोड़ा दौड़ाता हुआ आया और उमर के करीब घोड़े से उतरते हुए उसने कहा, मेरे आका, एक ईसाई लड़की आपसे मिलना चाहती है। उमर ने तशवीश से पूछा, वो कौन है और किसके साथ यहाँ आई है? हवाजन ने अपने घोड़े की बात पकड़कर उमर और अरीता के साथ साथ चलते हुए कहा, हमारी वही जासूस उसे साथ लाया है जिसने पिछली बार बरवक्त सलीबों के हमले की इत्तला दी थी। उस जासूस का कहना है कि इस हमले की खबर भी उस ईसाई लड़की ने दी थी। वो ये भी कहता है कि वो इस लड़की को अच्छी तरह जानता है और वो हमेशा हमारे दुश्मनों के मुतालिक सही इत्तलात मुहैया करती है। वो जमानत देता है कि ये लड़की हर लिहाज से काबिल एतबार है। उमर ने कुछ सोचते हुए कहा, क्या तुमने खुद भी उससे बात की है? हाँ, मैं उससे मिल चुका हूँ। क्या तुमने उससे पूछा वो कहाँ रहती है? वो हमारे मस्कन के हदूद से 5 मील यरूशलेम की तरफ एक पुराने गिरजे में एक बूढ़ी राहिब के साथ रहती है। हमारा जासूस कह रहा था कि वो राहिब भी काबिल एतमाद है और इस लड़की के साथ वो भी मुसलमानों के लिए जासूसी करता है। उमर गहरी सोचों में खो गया। क्या वो लड़की राहिबा है? हाँ, वो राहिबा है। तुमने उसका नाम पूछा? हाँ, उसने अपना नाम मारिया बताया है।
मरियाना बताया है, और वो राहिब जिसके साथ वो रहती है उसका नाम वो शीबा बताती है। हमारा जासूस कह रहा था कि गिरजे का वो राहिब जिसके पास बतौर राहिबा रहती है उसका हकीकी बाप है। दोनों बाप बेटी मुसलमानों से मोहब्बत करती हैं, इसलिए वो हमारे लिए जासूसी करते हैं। उमर ने अंदेशा जाहिर किया, क्या ये मुमकिन है कि वो ईसाइयों के लिए हमारी जासूसी भी करती हो? और अब इस सिलसिले में दोनों हमारी तरफ से भारी मुआवजे के मुतालबा करने वाजन से बात काट दी। ऐसा मुमकिन है मेरे आका, मैं और अबू नवास मारियाना से खुलकर बात कर चुके हैं। उसकी बातों की गहराई में खुलूस, सच्चाई और रास्ती है। मुझे वो कोई मजलूम लड़की लगती है जो मुसलमानों से मोहब्बत करती है। वाजन खामोश हो गया क्योंकि उनका मकान नजदीक आ गया था। जब वो उमेर के कमरे में दाखिल हुए तो अंदर अबू नवास, कोलान और हमूरा और मरियाना बैठे हुए थे। उम्र के लिहाज से मरियाना बमुश्किल 16 बरस की होगी। उसके बाल लंबे और सुनहरे थे। वो एक हसीन तरीन लड़की थी जिसके चेहरे का रंग ऐसा था जैसे मैदे को खालिश दूध में गोल कर उसमें गुलाबी रंग मिला दिया जाए। वो राहिबों के सफेद लिबास पहनी हुई थी। सर पर सफेद टोपी पहनने के बावजूद उसके सुनहरी, लंबे और बारीक बाल इधर उधर बिखरे हुए थे। उसके गले में सुनहरी सलीब लटक रही थी और कमरे के अंदर वो कयामत में बैठी हुई थी। अबू नवास उमेर की तरफ इशारा करते हुए बोला, यह हमारे सालार आला। मरियाना ने मुस्कुराते हुए फौरन बोल पड़ी, उमेर बिन खिजाम, और उनके साथ इनकी बीवी जिसका नाम अरीता है। अरीता कोलान और हमूरा के पास बैठ गई। उमेर अबू नवास के पास बैठता हुआ बोला, तुम मुझे और मेरी बीवी को कैसे जानती हो? मरियाना ने बड़ी बेताबी के से जवाब दिया, जिस तरह आपके सिपाही आपको जानते हैं और पहचानते हैं, इसी तरह मैं भी आपको जानती हूँ। आपके अक्सर जासूस मुझे जानते हैं और उनमें से बहुत से ईसाइयों के मुतालिक मालूमात और इत्तलात मुझे ही से हासिल करते हैं। मैं अपने आप को आपके लश्कर का एक सिपाही समझती हूँ। आज आपके लिए एक अहम खबर लेकर और अपने लिए एक जमानत हासिल करने आई हूँ। कैसी जमानत? आपके लिए जासूसी करते हुए अगर ईसाइयों के हाथों कभी मैं पकड़ी जाऊं तो आप मेरी रिहाई और हिफाजत का बंदोबस्त करेंगे। मैं तुम्हें तुम्हारी हिफाजत की जमानत देता हूँ। क्या आप मुझे इस बात की भी इजाजत देंगे कि आइंदा मैं भी अहम इत्तलात आपके जासूस को मुहैया करने के बजाय बराह रास्त आप तक पहुंचूं? इस तरह मुझे इत्मीनान हो जाएगा कि वो इत्तलात आप तक पहुंच चुकी है। तुम्हें इस बात की इजाजत है, अगर तुम जब चाहो मेरे मिस्किन में आ सकते हो। मैं अपने जासूसों और मुहाफिजों को मुतला कर दूंगा। अब वो अहम खबर कहो जिसका तुमने जिक्र किया है। मरियाना ने परेशानी में कहा, पिछले दिनों यरूशलेम के पिशिद ने दूर नजदीक के सब राहिबों की मजलिस से शोरा बुलाई थी, जिसमें मैं और मेरा बाप भी शामिल हुए थे। इस मजलिस में बिशीर ने बताया था कि पाए आजम की रूगिरी मुहिम एक नई सलीबी जंग के तरह डाल रहा है। यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक को उसने इस नई जंग में हिस्सा लेने के लिए हुक्म दिया है। अब तक जो बादशाह इस जंग में हिस्सा लेने का अहद कर चुके हैं उनमें फ्रांस और इंग्लिस्तान के बादशाहों के अलावा ह्यूग अमीर बर्लिनी के कई बादशाह उसमें शामिल हैं और ये सब जंग की तैयारी भी शुरू कर चुके हैं। उनका इरादा पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा करने का है। गिरोही नहोम के कहने पर इस के दो शोला बयान मजहबी जमातें फ्रांसिस और डाई निकीम जगह जगह वास करके ईसाइयों को मुसलमानों के खिलाफ उठ खड़े होने को उकसा रहे हैं। फिलिस्तीन की निगाहें आप और आपके मिस्किन पर भी होंगी। यरूशलेम के बिशप ने सब राहिबों को हुक्म दिया कि जगह जगह फैल जाओ और मुसलमानों की जासूसी करो। यूरोप के सलीबी लश्कर पहुंचने से कबल वो यहाँ इस सरजमीन में उनके लिए नफसानी तौर पर एक खुशगवार माहौल पैदा करना चाहता है। उमेर ने दुख से कहा, यरूशलेम तो पहले ही उनके पास है, अब वो मुसलमानों से क्या चाहते हैं? पूरा फिलिस्तीन। उमेर ने कुछ सोचा, फिर सर उठाते हुए कहा, इत्तला पहुंचाने पर मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। शुक्र कैसा? अब तो ऐसा काम मेरे फराइज में शामिल है। उमेर ने हुआजन के कान में कुछ कहा, उठकर बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वो जब लौटा तो उसके हाथ में नकदी की थैली थी। हुआजन से उमेर ने थैली लेकर मरियाना की गोद में रखते हुए कहा, एक छोटी सी रकम है, रख लो, तुम्हारे काम आएगी। मरियाना ने परवाज पुरजोर एहतिजाज किया, मैंने किसी किस्म की रकम के बदले तो आपके लिए काम करने का वादा नहीं किया। ये हुआजाना नहीं, मैं खुशी से तुम्हें तुम्हारे अखराजात के लिए दे रहा हूँ। उमेर ने मुस्कुराते हुए अबू नवास से पूछा, इसे कुछ खाने भी दिया? मरियाना खुद ही बोल पड़ी, कोलान और हमरा पहले ही मेरी काफी तवाजु और आओ भगत कर चुकी है। इसके साथ मरियाना खड़ी हुई, अब मैं चलती हूँ। सब उठकर बाहर आए। उमेर, अबू नवास और हुआजन तीनों मरियाना को किले से बाहर तक छोड़ने आए। मरियाना अपने घोड़े पर सवार होते हुए बोली, नई सलीबी जंग की सूरत में आपका रवैया क्या होगा?
उमी ने उसके घोड़े की गर्दन पर हाथ रखते हुए कहा, मैं इस सिलसिले में शाम के हुक्मरान अल मलिक अल नासिर से गुफ्तगू करूंगा। मरियाना ने चौंक कर पूछा, मिस्र से क्यों नहीं?